Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha and today we are going to talk or learn about the rocks and the rock cycle. That is the igneous rock, sedimentary rock and the metamorphic rock. In the previous videos in geography section, we have discussed in detail about the earth crust, earthquake, volcanic eruption and the volcanic landform. Okay, so in this in this video we talk in detail about the rocks. Okay, and the types of rock, which means igneous, sedimentary and the metamorphic rock. So we start our video or the class from the basic of rock. See, we all know that our earth crust is made up of various types of rock. That we all know that. What I just used word, earth crust is made up of various types of rock. And now if I talk about the rock, then what it is the naturally occurring aggregate of minerals and the certain non-mineral material like fossil and the glasses. मीन्स ग्लास. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो मैंने क्या कहा कि अर्थ क्रस्ट जो हमारी बनी है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से बनी है. जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहा इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. यहाँ पे भी मैंने ये तीनों रॉक यहाँ पे बताए हैं. ये जो रॉक है ये क्या है, नेचुरली अकॉर्डिंग रॉक जो है नेचुरली अकॉर्ड होता है. और ये कैसे बना हुआ है, मिनरल्स एंड सर्टेन नॉन मिनरल्स और इंक्लूडिंग मीन्स जैसे कि इसमें फॉसिल एंड द ग्लास की हम बात करते हैं. Just as a mineral are the building block of rock, we all know that rock in turn are the natural building block of the earth, lithosphere, asthenosphere, mesosphere and even the part of the core. I again repeat just what I just say कि just as a mineral are the building block of rock. हमें पता है कि minerals क्या है, building block of rock. And जो rock की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ in turn are the natural building block of the earth, lithosphere, asthenosphere, mesosphere and even the part of the core. See, in the previous video, I already talked in detail about the lithosphere, asthenosphere, mesosphere and the core. I don't think so we need to waste our energy. Why I use waste? Because we already covered this topic. Okay, and in detail we already covered. So here rock in turn are the natural building block of the earth, lithosphere, asthenosphere, mesosphere and even the part of the core. Most rocks now exposed at the surface of the earth form in or the continental or the oceanic crust. That we all know that. क्योंकि basically मैंने word क्या यूज किया कि earth crust किससे बनी है, various types of rocks से. तो यहाँ पे भी मैंने क्या कहा कि अभी जो हम ये rock को expose means rock को जो हम देख रहे हैं surface of the earth पे, तो maybe in the form of continental or the oceanic crust. मेन पॉइंट सी यहाँ पे स्लाइड पे भी मैंने वही चीजें कही है, बट इन शॉर्ट तरीके से यहाँ पे बताइए कि अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और द मोर मिनरल्स. रॉक मे बी हार्ड और द सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, ग्रेनाइट इज हार्ड, सोपस्टोन इज सॉफ्ट, गैब्रो इज अ ब्लैक क्वार्ट्जाइट, कैन बी अ मिल्की वाई. रॉक डू नॉट हैव अ डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूट. कोई ऐसा डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है, बट यस हम नो डाउट ये कह सकते हैं कि रॉक जो है ये बना ही है किसके मतलब मिनरल से, या मिनरल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द रॉक है. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो यहाँ पे देर आर टू जनरल वेज ऑफ द रॉक कम टू बी एक्सपोज एट द सरफेस. मैंने कहा ना कि ये जो रॉक ये बन रहे हैं ये दो तरीके से आते हैं. पहला तो फॉर्मेशन एट द सरफेस, कुछ रॉक जो है एग्जैक्टली सरफेस पे बनते हैं, एंड अनदर फॉर्मेशन बिलो द सरफेस. अब ऑन द सरफेस या एट द सरफेस जो मैं कह रही हूँ ये कैसे, इसमें यदि एग्जांपल की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लावा, प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्साइट, ओके, फ्रॉम द सी वाटर एंड ऑल. तो इस तरीके से कुछ जो रॉक जो एक्सपोज हो रहे हैं वो कहाँ पर जो एक्सपोज हो रहा है एट द सरफेस, तो इसमें से जो मैंने पहले कहा वो है हमारा फॉर्मेशन एट द सरफेस. सेकेंड यदि हम बात करते हैं फॉर्मेशन below the surface, followed by the tectonic uplift and the removed by the overlying material by the erosion. You getting my point? Formation below the surface की भी हम बात करें तो ये कैसे बन रहे हैं, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट की वजह से हो रहे हैं, या रिमूव ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इरोजन. तो इस तरीके से हमने क्या देखे, टू जनरल वेज देखे जिसमें रॉक क्या है एक्सपोज होता है एट द सरफेस. So, अभी यहाँ पे मैं बात करूंगी कि on the basis of mode of formation, rock may be classified into three types. First one is the igneous rock, second sedimentary rock, and third is the metamorphic rock. Okay. तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक, जिसमें igneous rock, sedimentary rock and the metamorphic rock. अब igneous rock को यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये दो तरीके से होता है, इंट्रूसिव और एक होगा एक्सट्रूसिव.
सेडिमेंट्री को हम वैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये क्लासिक, बायोलॉजिकल एंड द केमिकल, एंड मेटामॉर्फिक को फोलिएटेड एंड द नॉन फोलिएटेड. एंड दीज आर देयर एग्जांपल्स कि इंट्रूसिव में हम क्या देखेंगे, गैब्रो, डायराइट, ग्रेनोडायराइट एंड द ग्रेनाइट. एक्सट्रूसिव में बसाल्ट, एंडेसाइट एंड ऑल. क्लास्टिक में भी वही है, सिलस्टोन, शेल. बायोलॉजिकल में कोल, केमिकल में लाइमस्टोन, फोलिएटेड में लाइक ये वाले जो सारे जो है ना, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक है. सो अभी हम आगे वन बाय वन क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें से जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन आ रहा है वो है इग्नियस रॉक. सी, इग्नियस रॉक को यदि मैं स्टार्ट करूं तो व्हाट इट इज, द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा फ्रॉम द फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ. सी, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मैग्मा इरप्ट हो रहा है, और ये इरप्टेड मैग्मा जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है. यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहा मैंने, ये मैग्मा क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है. सी, नॉट यहाँ पे जो मैं इग्नियस रॉक की बात कर रही हूँ तो ये नॉट नेसेसरी कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ ही है. कभी कभी क्रस्ट के इनसाइड भी क्या होता है, सॉलिडिफाइड होता है. इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. और जब ये बाहर आता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. तो यहाँ पे जस्ट डायग्राम मैंने इसलिए आपको बताया कि ये जो मैग्मा इरप्ट हो रहा है, और ये जो मैग्मा या तो यहाँ पे या बाहर की तरफ जब ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है, ओके, जब ये मैग्मा सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है, तो इसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक. यू गेटिंग माय पॉइंट? और ध्यान रखना कि ये फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ है. इग्नियस रॉक जो है ये फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ है. जो ये रॉक फॉर्म हो रहा है आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा. अब मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मैग्मा एंड लावा में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मैग्मा वर्ड यूज किया है. तो मैग्मा मीन्स क्या है, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस. जब ये रॉक, सी यहाँ पे ये जो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इरप्शन हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये तो मोल्टन रॉक ही है. गेटिंग माय पॉइंट? या मैं क्या कह रही हूँ कि ये रॉक ही है जो मोल्टन स्टेज में है, और ये जो रॉक है, ये मोल्टन रॉक जब ये बिलो द सरफेस होता है, मैग्मा चेंबर तक होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं. और जब ये मोल्टन रॉक यहाँ से अबाउ द सरफेस आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. नाउ सी, हम हमारे पॉइंट पे जा रहे हैं जिसमें हम इग्नियस रॉक को बात कर रहे हैं. Rock form out of solidification of the magma and the lava and are also known as igneous or the primary rock. तो यहाँ पे मैंने मैग्मा को क्या कहा, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस एंड द लावा मोल्टन रॉक अबाउट द सरफेस. और इन दोनों को, या रॉक फॉर्म आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा आर नोन एज इग्नियस, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक. सी, ये जो रॉक है इग्नियस रॉक, ये अनफॉसिलिफेरस रॉक है. अगेन रिपीट, ये जो रॉक है ये इसे अनफॉसिलिफेरस रॉक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, मैग्मा देखा. मैग्मा है मींस उसमें आग है. इन शॉर्ट यदि मैं बात करूं आपको, तो यह लावा वर्ड हम यूज कर रहे हैं. तो इस वजह से इस इग्नियस रॉक में हमें कोई भी फॉसिल नहीं दिखता है. समझ आई आपको बात? सो हैविंग देयर ओरिजिन अंडर द कंडीशन ऑफ द हाई टेम्परेचर, द इग्नियस रॉक आर अनफॉसिलिफेरस. यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इतना ज्यादा हाई होता है कि कोई भी फॉसिल हमें यहाँ पे नहीं मिलता है. So the granite, gabbro, basalt are the some example of the igneous rock. यहाँ पे भी मैंने लिखा है granite, gabbro and the basalt are the some example of the igneous rock. So there are the three types of igneous rock. See, यहाँ पे मैंने क्या कहा, three types of igneous rock, जिसमें हम बात करेंगे plutonic rock, volcanic rock and the intermediate rock. इसको हम one by one देखेंगे तीनों rock को. And again इन्होंने कहा कि there are two types of rock based on the presence of acid forming radical silicon. Like one is the, देखो पहले तो थ्री टाइप ऑफ इग्नियस रॉक है. ये किस पे बेस है, बेस्ड ऑन द प्लेस एंड द टाइम के हिसाब से यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव एंड इंटरमीडिएट रॉक मिल रहा है, या प्लूटोनिक, वोल्केनिक एंड द इंटरमीडिएट रॉक मिल रहा है. और यही यदि हम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के बेस पे करें तो हमें दो टाइप के रॉक मिल रहे हैं, एक तो एसिड रॉक और एक मिलेगा हमें बेसिक रॉक. ओके, सो हम यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जो पहला है उस टॉपिक को हम क्या करें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और इसी को हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक. सो इफ मैग्मा कूल्स स्लोली एट अ ग्रेट डेप्थ, अगेन रिपीट, इफ मैग्मा कूल्स स्लोली एट अ ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन फॉर्म्ड इन द रॉक मे बी अ वेरी लार्ज. यहाँ पे मैंने क्या कहा, देखो ये वाला हम इंट्रूसिव रॉक की बात कर रहे हैं. ये जो प्लूटोनिक एंड ऑल, ये जो एग्जाम्पल है ग्रेनाइट,
ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे इग्नियस रॉक के, और वो भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के। यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आई यूज वर्ड ग्रेनाइट। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैग्मा जो है कूल हो रहा है एट द ग्रेट डेप्थ। सी, जो इंट्रूसिव रॉक मीन्स क्या है कि जो मैग्मा है ये बाहर नहीं आ रहा है, ये मैग्मा यहीं पे क्या हो रहा है, स्टार्ट यहीं पे ये कूल होना स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ग्रेट डेप्थ में, एंड दैट फॉर्म द रॉक एंड मे बी, तो यहाँ पे जो कूल डाउन हो रहा है ये बहुत मीन्स वेरी लार्ज अमाउंट में यहाँ पे रॉक फॉर्म होता है। सच अ रॉक आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक और द प्लूटोनिक रॉक, और इसी रॉक को हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव और द प्लूटोनिक रॉक। These rock appear on the surface only after being uplifted and the denuded। और ये जो रॉक है, ये जो रॉक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये रॉक कब हमें सरफेस पे दिखता है? जब इसको अपलिफ्ट किया जाएगा या डेन्यूडेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा। यूजुअली मीडियम क्या है इसका? कोर्स ग्रेन टेक्सचर में होता है ड्यू टू द स्लो कूलिंग, क्योंकि यहाँ पे जो कूलिंग है ना एक्सट्रीमली स्लो होती है, और इसी वजह से इसका जो मीडियम है वो कोर्स ग्रेन टेक्सचर में दिखता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या रख सकते हैं? ग्रेनाइट, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट, अपार्ट फ्रॉम दैट डायोराइट एंड द गैब्रो, एक इसके एग्जाम्पल आ रहे हैं हमारे इंट्रूसिव रॉक के। ठीक है, एक्सपोज एट द सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन एंड द इरोजन। जब इरोजन होगा या डेन्यूडेशन होगा उसी समय इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होगा? एक्सपोज होगा हमारे सरफेस पे। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बहुत क्लियरली ये चीजें बताने की कोशिश यहाँ पे की है। तो इंट्रूसिव का यहाँ पे हमने क्या कहा है कि मैग्मा कूल्स स्लोली एट द ग्रेट डेप्थ एंड मिनरल ग्रेन्स फॉर्म इन द रॉक मे बी वेरी लार्ज। यहाँ पे बहुत स्लोली यहाँ पे क्या होता है? मैग्मा कूल डाउन होता है, मिनरल ग्रेन जो फॉर्म होते हैं रॉक, और वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड रॉक की बात कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं एक्सट्रूसिव रॉक और द लावा और द वोल्केनिक रॉक। अब एक्सट्रूसिव और द लावा और वोल्केनिक रॉक ये क्या है? सडन कूलिंग ऑफ मैग्मा जस्ट बिलो द सरफेस, और लावा अबाउट द सरफेस रिजल्ट इन अ स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन इन द रॉक एज रैपिड कूलिंग प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, एज रिजल्ट सच अ रॉक आर फाइन ग्रेन। बात करें एक्सट्रूसिव, मतलब ये जो लावा है या ये मैग्मा, ये क्या आ रहा है? यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लावा क्या है? सडन बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सडन कूलिंग देख रहे हैं। तो सडन कूलिंग ऑफ मैग्मा जस्ट बिलो द सरफेस, और इधर ऐसे ये जो ये लावा है ये कूलिंग क्या हो रही है? सडन कूलिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है, और ये रिजल्ट किसमें आ रहा है? स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन इन द रॉक एज अ रैपिड कूलिंग प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन की बात की, पर यहाँ पे कोई भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि कूलिंग जो है ना बहुत ज्यादा रैपिडली हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे फाइन ग्रेन रॉक्स हमें मिलते हैं, और उस फाइन ग्रेन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो सच रॉक आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक और द वोल्केनिक रॉक। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे हम क्या दे सकते हैं? बासाल्ट। बासाल्ट क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक। द डेक्कन ट्रैप जो है ना हमारे इंडियन पेनिनसुला में, वो भी क्या है? बेसाल्टिक ओरिजिन में ही है, और वो भी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है। बेसिक रॉक कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बेसिक ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये इसमें हमें मिलता है, एंड ड्यू टू विच हम ये क्या देखते हैं? डेंसर एंड द डार्कर इन कलर। हम यदि डेक्कन की भी बात करें ना, तो वहां पे जो सॉइल है उसे हम रेगुर कहते हैं। रेगुर मीन्स द ब्लैक सॉइल, और वो क्यों है? क्योंकि वो डार्कर कलर आया है। क्यों? बिकॉज द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स यहाँ पे क्या है? हमें प्रेजेंट मिलते हैं। ठीक है, तो अभी यदि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो डेक्कन प्लेटियो हमारे इंडिया में, या स्नेक प्लेटियो आप याद रख सकते हो कोलंबिया का, और ये क्या है? इसी के एग्जांपल्स यहाँ पे है। किसके? एक्सट्रूसिव रॉक के। अब थर्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट रॉक। सी, इंटरमीडिएट रॉक मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था डाइक किसे कहते हैं, सिल्स किसे कहते हैं। मैंने क्या कहा था? डाइक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है सीधा अर्थ सरफेस के ऊपर। सी, यहाँ पे ये आपको डार्कर लाइन दिख रही है ना, ये क्या है? सरफेस पे क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर है, इसे हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। सिल्स मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली जो मैग्मा है ये ट्रैवल होता है, जहां पे भी उसको जगह मिले ना उस तरीके से जो ये ट्रैवल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सिल्स कहते हैं। और इसी तरीके का मैग्मा एकदम थिनर लेवल में जब ये हॉरिजॉन्टली मूव होता है उसे हम शीट्स कहते हैं। पर ये थिक लेवल का मैग्मा है, यहाँ पे हमें लेयर दिख रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसे क्या कहते हैं? हम सिल। तो देखो ये जो इंटरमीडिएट रॉक है इसी को हम क्या कहते हैं? डाइक रॉक। सी, ये जो आ रहा है ना परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस पे, इसी को हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं, और डाइक रॉक कहते हैं, या अदर वर्ड हाइपरबैसल भी इसे कहते हैं। अब the rock occupy an intermediate position between the deep-seated plutonic body and the surface of the lava flow। तो ये कहाँ पे हमें एक जो यहाँ पे डीप
जो इनसाइड यहाँ पे प्लूटोनिक बॉडी एंड द सरफेस ऑफ लावा, ये जो सरफेस पे जो लावा आ रहा है ना, इनके बीच में जो एक इंटरमीडिएट पोजीशन हमें दिख रही है, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ऑक्युपाई करता है इंटरमीडिएट पोजीशन किसके बीच में, डीप सीटेड प्लूटोनिक बॉडी एंड द सरफेस ऑफ द लावा, जो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट रॉक और द डाइक रॉक। डाइक रॉक आर सेमी क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, हमेशा ध्यान रखना ये जो रॉक है, सॉरी ये तो सिल्स है, ये जो रॉक है ये क्या है, सेमी क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर में हमें दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी स्लाइड पे मैंने और आपको कहा था, एक हमने देखा कि बेस्ड ऑन द प्लेस एंड टाइम, इसमें हमने प्लूटोनिक की बात की, वोल्केनिक की बात की, इंटरमीडिएट की बात की। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि एसिड फॉर्मिंग रेडिकल के बेस पे भी हमने ना इसे दो टाइप में डिवाइड किया है, एक एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। सो यहाँ पे मैं ओरली बताने की कोशिश करूंगी आपको कि एसिड रॉक और बेसिक रॉक क्या है, इसमें क्या डिफरेंस हम कर सकते हैं। एसिड रॉक मींस क्या है, द हाई कंटेंट ऑफ सिलिका, जिसमें ना हाई परसेंट ऑफ द सिलिका होगा, 80% अराउंड जो सिलिका प्रेजेंट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रॉक। And these rock have a lesser content of heavier minerals like iron, magnesium, इसमें बहुत कम होता है, hence they are less denser and light in color than the basic rock। इसी वजह से एसिडिक रॉक जो है क्या कह रही हूँ मैं, लाइट कलर का होता है एज कम्पेयर टू बेसिक रॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रॉक है कंस्टिट्यूट क्या करता है, सियाल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। हमने कहा था क्रस्ट किससे बना है, सियाल से। यू गेटिंग माय पॉइंट, यू रिमेंबर एल्यूमिनियम एंड द सिलिकॉन की मैंने बात किया था, इससे क्या है, क्रस्ट बना है। तो ये जो एसिडिक रॉक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये क्या कंस्टिट्यूट करता है, सियाल पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। अब इसमें एक्सेस सिलिकॉन है, एसिडिक, तो एक्सेस सिलिकॉन की वजह से जो एसिडिक मैग्मा जो है ना, ये फास्टली कूल होता है एंड इट डज नॉट फ्लो एंड स्प्रेड फार अवे, और इसी वजह से ये ना दूर तक फ्लो होता है और ना ही स्प्रेड होता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो हाई माउंटिंग जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक रॉक की वजह से ही हो रहे हैं। सो ये रॉक क्या है, हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, मैसिव है और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक रॉक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक रॉक की। एसिडिक रॉक के बाद अब बात कर रही हूँ बेसिक रॉक। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, एसिडिक में क्या है, हाई इन सिलिका लेवल मैंने वर्ड यूज किया, क्या कहा, हाई कंटेंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन द एसिडिक रॉक। तो अपोजिट होगा बेसिक रॉक में, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, पुअर इन सिलिका। जैसे यहाँ पे एसिडिक में मैंने 80% अराउंड कहा था सिलिका प्रेजेंट होता है, तो यदि बेसिक रॉक की बात करें तो अबाउट 40% के आसपास जो है ना सिलिका इसमें प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम जो है, सॉरी मैग्नीशिया जो है ना, ये भी 40% इसमें हमें दिखता है। अब क्या कह रही हूँ यहाँ पे, ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट, जैसे एसिडिक में 80% सिलिका था मैंने बताया, तो ऑफकोर्स बेसिक में क्या है, सिलिका लो है। तो ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट द पैरेंट मटेरियल लाइक जो भी रॉक का है वो स्लोली कूल होता है। वहां पे मैंने क्या कहा कि इसकी कूलिंग फास्टर हो रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट, किसकी, एसिडिक रॉक की। बट यहाँ पे सिलिका का कंटेंट ही कम है, तो जो मटेरियल है स्लोली कूल होता है एंड दस फ्लो एंड स्प्रेड फार अवे। पर एसिडिक का क्या है, ये ना फ्लो हो रहा था ज्यादा दूर तक, ना स्प्रेड हो रहा था, क्योंकि ये क्या जल्दी कूल वहां पे हो रहा था। पर बेसिक रॉक की बात क्या कह रही हूँ कि ये स्लोली कूल हो रहा है, तो इसके पास टाइम मिलेगा कि ये फ्लो भी हो सकता है और स्प्रेड भी हो सकता है। You getting my point? So presence of heavy element impart to this rock a dark color। तो यहाँ पे क्या था, लाइटर कलर था, पर यदि बेसिक रॉक की हम बात करते हैं तो इसका जो कलर है ये बहुत ज्यादा डार्क इन कलर हमें दिखता है। ठीक है, यदि हम बात करें एसिडिक रॉक की, तो इसके क्या एग्जाम्पल आएंगे आपके पास, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर। और यदि बेसिक रॉक की हम बात करते हैं तो बेसाल्ट, गैब्रो, ये किसके एग्जाम्पल्स आएंगे आपके बेसिक रॉक के। जी, यहाँ पे हमने रॉक, इग्नियस रॉक को कंप्लीट किया। तो कंप्लीट होने के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करते हैं तो मैग्मा जो है चीप सोर्स ऑफ मेटल है। ऑलरेडी मैंने बोला क्यों मैग्मा को चीप सोर्स ऑफ मैंने मेटल कहा, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, अंदर इनसाइड से इरप्ट हो रहा है, विद क्या कह सकते हैं, मिनरल ग्रेन्स इसमें से हमें फॉर्म हो रहे हैं ज्यादा। तो यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि मेटल ओर्स है, मेनी ऑफ देम एसोसिएट विद द इग्नियस रॉक, ये तो हमें पता है। मींस क्या कह रही हूँ मैं कि मैग्मा जो है चीप सोर्स ऑफ किसका है, मेटल ओर्स। तो इसमें जो मिनरल फाउंड हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है, किसके, इग्नियस रॉक की। जैसे कि इसमें हमें मिलेगा आयरन, निकल, कॉपर, लीड, जिंक, यू गेटिंग माय पॉइंट, गोल्ड, डायमंड, ये सब सारे के सारे जो मिनरल्स है ना, ये ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू के हैं और ये हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, इग्नियस रॉक के अंदर। यू गेटिंग माय पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओल्ड रॉक ऑफ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला,
जो कि रिच किसमें, मिनरल्स एंड द मेटल। ओल्ड रॉक ऑफ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला की यदि हम बात करते हैं तो ये भी क्रिस्टलाइज मिनरल एंड मेटल्स में क्या है, बहुत ज्यादा रिच हमें मिलता है। मेनी इग्नियस रॉक्स लाइक ग्रेनाइट आर यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड एज दे कम इन द ब्यूटीफुल शेड्स। तो ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं जिसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक, और ये सेकंड टाइप का रॉक है जो बनता है। प्राइमरी रॉक कौन सा काम है ना, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, प्राइमरी रॉक है, और सेकेंडरी रॉक की हम बात करते हैं तो वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म बाय द लिथिफिकेशन। सी यहाँ पे भी मैंने वर्ड यूज किया कि ये कैसे बन रहा है, लिथिफिकेशन की वजह से बन रहा है। ये यहाँ पे आपको सेडिमेंट्री और ये इसके लेयर्स बनते हुए आपको ये दिख रहे हैं, और ये कौन सा रॉक है आपका, सेडिमेंट्री रॉक। और ये कैसे बन रहा है, लिथिफिकेशन मतलब कंसोलिडेशन, कंपैक्शन एंड ऑफ द सेडिमेंट। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं और कॉम्पैक्ट हो रहे हैं सेडिमेंट, और इसी वजह से जो रॉक यहाँ पे हमें दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। हेंस दे आर लेयर्ड एंड स्ट्रैटिफाइड ऑफ वेरिंग थिकनेस। देखो ये अलग अलग लेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और हर एक लेयर में ना एक अलग अलग थिकनेस दिख रही है। तो यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँ तो सैंडस्टोन, शेल, ये भी इसी के एग्जाम्पल्स में मिलेंगे। सेडिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन सेडिमेंट जो है किस क्यों हो रहा है, डेन्यूडेशन मतलब क्या, वेदरिंग एंड द इरोजन। यहाँ से वेदरिंग होगा या इरोजन होगा और एक जगह पे सैचुरेट होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट है, और ये सेडिमेंट्री रॉक मतलब सेडिमेंट से ही बना है। और ये सेडिमेंट कैसे बन रहा है, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग एंड द इरोजन। और ये जो वेदरिंग या इरोजन या ये डेन्यूडेशन जो प्रोसेस में कह रही हूँ ना, ये ऑल फॉर्म्स ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ रॉक मतलब ये कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं, ये जो डेन्यूडेशन है ना तीनों टाइप से हो रहा है, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक से हो रहा है, इग्नियस रॉक से हो रहा है एंड द सेडिमेंट्री रॉक से हो रहा है। तो ये तीनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे सेडिमेंट फॉर्म हो रहा है, और इससे जब इनका इस सेडिमेंट का फिर जब कंपैक्शन एंड द सीमेंटेशन होता है तब जो रॉक फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। यू गेटिंग माय पॉइंट। आई होप अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। फिर मैं हमारे मेन टॉपिक पे आती हूँ जो है हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो दिस टाइप्स ऑफ रॉक कवर 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये जो रॉक है ना ये 75% ऑफ अवर जो अर्थ क्रस्ट है वो कवर करता है, एंड ओनली ऑक्यूपाई ओनली 5%। व्हाई, बिकॉज दे आर अवेलेबल ओनली इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। पर प्रैक्टिकली हम 5% कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ अपर क्रस्ट के ही ऊपर हमें दिखता है। सो आइस डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक आर कॉल्ड द टिल। यदि आइस डिपॉजिट होगा ना सेडिमेंट्री रॉक तो इसको कहेंगे टिल। विंड डिपॉजिट सेडिमेंट होगा तो इसे हम कहेंगे लोएस। यू गेटिंग माय पॉइंट। इसे क्या कहेंगे हम, लोएस कहेंगे। सो upon the mode of formation, sedimentary rock are classified into the 3 types. इसको भी हम 3 तरीके से इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है इस सेडिमेंट्री रॉक को। तो इसमें जो पहला मैंने क्या कहा, मैकेनिकली फॉर्म। तो मैकेनिकली क्या होगा, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस। ये कैसे, मैकेनिकली। ऑर्गेनिकली फॉर्म की बात करेंगे तो चार्ट, लाइमस्टोन, कोल। केमिकली फॉर्म लाइमस्टोन अगेन एंड द पोटैश। ये क्या है, ये मतलब फॉर्मेशन है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का। तो इसमें से हम पहला टाइप की बात करते हैं वो है मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। सिर्फ मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक को हम इसी डायग्राम मींस इसी इमेज से समझने की कोशिश करेंगे। मैकेनिकली फॉर्म, दे आर फॉर्म मैकेनिकल एजेंट लाइक द रनिंग वाटर, विंड, ओशियन एंड द करंट। क्यों बन रहे हैं, यहाँ पे तो वही चीजें मैंने लिखी है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस डायग्राम पे बताने की कोशिश करूँ। तो ये मैकेनिकली मींस, अब मैकेनिकल कैसे, कौन सी एजेंट से मैकेनिकल, जैसे कि रनिंग वाटर, रिवर से हम बात करते हैं, विंड, ओशियन, करंट, एक मैकेनिकल एजेंट है। और इनकी वजह से क्या हो रहा है, सेडिमेंट एक जगह पे आ रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, सीमेंटिफाइड हो रहा है, और जो रॉक यहाँ पे बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। एडनेसियस सेडिमेंट्री रॉक हैव मोर सैंड। सी यहाँ पे एक वर्ड है यूज, ये एडनेसियस, इसका मीनिंग क्या है ना, ये भी ऑल सेडिमेंट मींस रॉक से वजह से जो यहाँ पे बन रहा है ना उसी को हम ये वर्ड यूज करते हैं, एडनेसियस। रॉक हैव अ मोर सैंड एंड द बिगर साइज पार्टिकल एंड आर हार्ड एंड द पोरस एंड दे फॉर्म बेस्ट रिजर्वायर फॉर द लिक्विड लाइक ग्राउंड वाटर एंड द पेट्रोलियम। तो मोस्टली जो पेट्रोलियम या ग्राउंड वाटर जो यहाँ पे रिजर्वायर हमें दिखते हैं, इसके अंदर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, तो किस तरीके का रॉक होगा, सेडिमेंट्री अर्नेसियस सेडिमेंट्री रॉक होगा। Now I talk about the argillaceous. Argillaceous means क्या होगा, argillaceous means mostly form of the clay. तो ये जो रॉक है ना इसमें more clay होगा and are fine grain, softer and mostly impermeable होगा, मतलब ये mostly non porous होगा
एंड वेरी टाइनी पोर्स यहाँ पे हमें दिखेंगे, जैसे क्लेस्टोन एंड शेल की हम बात करेंगे। तो ये जो हमने दो चीजें यहाँ पे बात की वो क्या, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। इसके अंदर आई यूज वन वर्ड इज द अर्नेसियस सेडिमेंट्री रॉक। अर्नेसियस मीन्स क्या है, जो बिगर सैंड मतलब सैंड से जो बना हुआ है उसी को हम कहते हैं अर्नेसियस सेडिमेंट्री रॉक। और ये क्या है, हार्ड है पर पोरस है, इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर या पेट्रोलियम इस तरीके के जो रिजर्वायर है हमें इसी सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। सो इन शॉर्ट यदि रिजर्वायर की बात करूं मैं ग्राउंड वाटर या पेट्रोलियम एंड ऑल के, तो किसमें हमें मिलेंगे, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। सेकंड में बात कर रही हूँ केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक से। इस डायग्राम पे हमें एक चीज समझ में आएगी जो मैं कह रही हूँ केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। तो वाटर कंटेनिंग मिनरल्स, जब वाटर कंटेनिंग मिनरल्स क्या होना स्टार्ट होते हैं, इवोपरेट एट द माउथ ऑफ द स्प्रिंग or the salt lake and give rise to the stalactite and the stalagmites। सी क्या कह रही हूं मैं, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, स्टालसाइट। और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जा रहा है, इसे क्या कह रहे हैं, स्टैलेग्माइट। तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मिनरल है वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। ये केमिकल की वजह से, तो ये केमिकल किसमें प्रेजेंट है, इस वाटर में। यू गेटिंग माय पॉइंट, या मिनरल में। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि वाटर, वो वाटर जिसके अंदर मिनरल्स हैं और वो क्या हो रहा है, स्टार्ट टू इवोपरेट। और ये कहाँ पे इवोपरेट स्टार्ट हो सकता है, स्प्रिंग्स में, माउथ ऑफ द स्प्रिंग या सॉल्ट लेक में। यहाँ पे देखो ये लेक तरीके का यहाँ पे मैं दिख रही हूँ। एंड इस वजह से क्या ये बनाते हैं, स्टालसाइट, ओके, या कह सकते हैं स्टैलेग्माइट। Getting my point? So deposit of lime left over by the lime mixed water as evaporate in the underground caves। तो ये underground caves में ना ये जो lime है डिपॉजिट हो रहे इस तरीके से, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टालसाइट एंड द स्टैलेग्माइट। और याद रखना ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का टाइप आ रहा है, पर ये कौन से, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, थर्ड रॉक की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिकली ये बन रहा है, तो ये जो ऑर्गेनिकली है, द रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर बरीड अंडर द सेडिमेंट। मैं क्या कह रही हूँ कि जो प्लांट एंड जो एनिमल्स हैं जब ये डेड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बरीड हो रहा है, ओके, बरीड अंडर द सेडिमेंट एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। फिर यहाँ पे हीट एंड प्रेशर जब आ रहा है फ्रॉम ओवरलाइंग लेयर एंड देयर कंपोजिशन चेंजेस। फिर जब ये प्लांट एंड एनिमल ये जब बरीड हो रहे हैं और इसके साथ जब ये हीट एंड प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है तो क्या हो रहा है, इनका कंपोजिशन चेंज हो रहा है और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोल एंड द लाइमस्टोन। और यही एग्जांपल है किसका, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक का। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रिडोमिनेंस ऑफ द कैल्शियम कंटेंट, उसके अंदर कितना कैल्शियम है, कितना कार्बन कंटेंट है, यदि मैं प्लांट की मैं बात करूं तो, getting my point। और सेडिमेंट्री रॉक में भी कैल्केरियस मींस लाइमस्टोन, चॉक, डोलोमाइट एंड ऑल, ये इस तरीके से क्या होते बनते हैं। और पिक्चर में दिख रहा है कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स स्ट्रैटा। देखो यहाँ पे ये लेयर्स आ रहे हैं, ये मेनी लेयर्स इन स्ट्रैटा में यहाँ पे दिख रहा है। दे होल्ड मोस्ट इंफॉर्मेटिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड ड्यू टू द मार्क लेफ्ट बिहाइंड द वेरियस जियोफिजिकल लाइक वेदर पैटर्न, विंड, वाटर एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो ये जो लेयर्स है ना, इस वजह से हमें मतलब क्या चीज पता चलती है, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। और ये भी क्यों पता चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे वेरियस जियोफिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है। जियोफिजिकल एक्टिविटीज में हम क्या कहेंगे कि वेदर पैटर्न क्या है, विंड क्या है, वाटर फ्लो किस तरीके का था, इस वजह से ये वाले लेयर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में हम फॉसिल्स की बात करेंगे, तो इस तरीके से ना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर फॉसिलिफेरस। इग्नियस रॉक में मैंने वर्ड यूज किया था कि वो फॉसिलिफेरस नहीं है क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर था, पर यदि हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करते तो ये फॉसिलिफेरस है। हाउ फॉसिल, किसके, प्लांट एंड एनिमल्स के। और ये होने के लिए हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक की बात की, और ये भी क्यों हो रहा है, बिकॉज, और ये कैसे फॉर्म हो रहा है, बिकॉज द रिमेन ऑफ प्लांट एंड द एनिमल। दीज रॉक आर जनरली पोरस एंड अलाउ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू देम। और ये क्या होते हैं, मोस्टली पोरस इन नेचर में ही हम इन्हें देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब सेडिमेंट्री रॉक को यदि हम एग्जांपल के तौर पे देखें और इंडिया के पर्सपेक्टिव देखें तो क्या कह सकते हैं कि एलुवियल डिपॉजिट कहाँ पे, इंडो गंगेटिक प्लेन जो है या कोस्टल प्लेन जो है, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट एंड दिस डिपॉजिट कंटेन द लोम एंड क्ले। अपार्ट फ्रॉम दैट सैंडस्टोन कहाँ पे हम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट ऑफ हिमालय, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड ऑल। विंध्या हाईलैंड की भी हम बात कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोल डिपॉजिट है ना हमारे इंडिया में, जो रिवर बेसिन कहाँ पे मोस्टली दिखेगा, दामोदर, महानदी, गोदावरी में, तो ये भी सेडिमेंट्री डिपॉजिट की वजह से ही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक आर नॉट एज रिच
इन मिनरल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा था इग्नियस रॉक क्या था, मिनरल ऑफ इकोनॉमिक सॉरी रिच इन मिनरल वैल्यूज में था, मींस सॉरी रिच इन मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। किसकी बात, इग्नियस रॉक, जिसके अंदर हमने गोल्ड, डायमंड एंड ऑल एटसेट्रा देखे थे। उस तरीके का नहीं है, बट इंपॉर्टेंट मिनरल लाइक हेमाटाइट, आयरन ओर, फॉस्फेट, बिल्डिंग स्टोन, कोल, पेट्रोलियम, ये यहाँ पे हमें मिलेगा। द डिके ऑफ टाइनी मरीन ऑर्गेनिज्म लाइक इल पेट्रोलियम, ये भी यहाँ पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट मिनरल लाइक बॉक्साइट, मैंगनीज, टीन, ये भी यहाँ पे हम मिल सकता है। और ये क्या कर सकता है, रिचेस्ट सॉइल, सेडिमेंट्री रॉक जो है ना ऑल्सो इल्ड सम रिचेस्ट सॉइल। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है सेडिमेंट्री रॉक का। अब हम थर्ड टाइप पे क्या रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, सो वर्ड मेटामॉर्फिक मींस क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म। देखो पहले में हमने क्या देखा था, यहाँ पे इग्नियस रॉक देखा था, ये क्या है, सीधा मैग्मा से बन रहा है। सेकेंड, जब इसका इरोजन स्टार्ट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है मेटामॉर्फिक रॉक। और अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक मींस क्या है, इसका कंप्लीटली जो चीज है ना वो चेंज हो रही है। मींस क्या है, मेटामॉर्फिक मींस चेंज ऑफ द फॉर्म। देखो यहाँ पे इसका फॉर्म ना कंप्लीट चेंज हुआ है, ये पिबल्स फॉर्म में दिख रहा है, स्मॉल एंड लार्जर पिबल्स एंड ऑल। सो मेटामॉर्फिज्म क्या है, इज अ प्रोसेस बाय विच रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स अकर विद इन द रॉक। तो यहाँ पे ये जो रॉक आपको दिख रहे हैं ना, इसके अंदर अब क्या है, प्रोसेस चल रही है, कौन सी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट। पहला क्या था हमारा, इग्नियस था, फिर हमने क्या देखा, दूसरा सेडिमेंट्री देखा, जिसने सेडिमेंट की बात की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक मींस क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल। ओके, एंड हाउ दिस अकर, ड्यू टू द प्रेशर देन द टेम्परेचर चेंजेस। अब ये क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम प्रेशर या टेम्परेचर के चेंजेस देख रहे हैं। व्हेन द रॉक आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल ऑफ द टेक्टोनिक प्रोसेस, और व्हेन द मोल्टन मैग्मा rising through the crust come in contact with the crustal rock, metamorphic rock occur। See, यहाँ पे इस डायग्राम में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या कहा यहाँ पे, पहला वर्ड when rock forced down to the lower level of by the tectonic process। पहले तो क्या कह रही हूं मैं, ये फोर्स डाउन हो रहा है किसके लिए, टेक्टोनिक प्रोसेस के लिए। और मोल्टन मैग्मा जो इग्नियस रॉक यहाँ पे, ये जो मोल्टन मैग्मा है राइज थ्रू द क्रस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक, और ये जब इस क्रिस्टल रॉक के कॉन्टैक्ट में आता है विद द क्रिस्टल रॉक, क्या अकर होना स्टार्ट होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। और क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक की यदि बात करें तो यहाँ पे हीट एंड प्रेशर आएगा, एंड देन जो रॉक फॉर्म होगा वो क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक। सी, इग्नियस रॉक के साथ भी सेम चीज है, यहाँ पे भी हीट एंड प्रेशर की जरूरत है, यहाँ पे भी हीट एंड प्रेशर की जरूरत है, एंड देन इट कन्वर्ट and it made the next form, that is the metamorphic rock। और you कह सकते हैं कि that means the recrystallization and reorganization of the mineral। in this process metamorphism, इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक, कुछ रॉक में मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। आई मीन सम रॉक ग्रेन्स मिनरल गेट अरेंज इन द लेयर्ड लाइंस, जैसे कि यहाँ पे अरेंजमेंट कॉल्ड द फोलिएशन एंड द लिनिएशन प्रोसेस में यहाँ में भी मिलेगा। यहाँ पे आई यूज वर्ड फोलिएशन एंड द लिनिएशन। समटाइम्स the minerals or the materials of the different group are arranged into the alternate thin or the thick layer, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बैंडिंग। यहाँ पे अरेंज हो रहे थे, कोई इस लेयर में आपको दिख रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, बैंडिंग। जैसे यहाँ पे स्लेट, मार्बल, ये क्या इसके एग्जाम्पल है। तो हम देख रहे हैं कॉजेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो इसमें जो मैं पहली बात करी वो क्या, ओरोजेनिक मींस द माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट। तो ये क्या कह रही हूँ कि सच ए मूवमेंट ऑफन टेक्स प्लेस विद एन इंटरप्ले ऑफ फोल्डिंग। पहले तो फोल्डिंग हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है और उस साइड से यूरोपियन प्लेट, इनके बीच में क्या है, फोल्डिंग हो रही है, रैपिंग हो रही है, और मोस्ट इंपोर्टेंट हाई टेम्परेचर है। हम देख रहे हैं वहां पे हिमालय है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, फोल्डिंग प्रोसेस होते हुए देखते हैं। एंड दिस प्रोसेस गिव अ एग्जिस्टिंग रॉक अ न्यू अपीयरेंस, और इस वजह से जो वहां पे ऑलरेडी रॉक है ना उसके अंदर न्यू अपीयरेंस आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री, सॉरी इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। लावा इनफ्लो, द मोल्टन मैग्मेटिक मटेरियल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब मैं बात क्या कर रही हूँ, लावा इनफ्लो की। देखो यहाँ पे लावा की बात करिए और लावा इनफ्लो की बात करिए। मोल्टन मैग्मेटिक मटेरियल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ब्रिंग द सराउंडिंग रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंस टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉज चेंजेस इन देम। इस डायग्राम पे नहीं आपको क्लियर होगा, ये वाला इस डायग्राम पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, लावा इनफ्लो। ये देखो ये लावा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि ये मोल्टन मैग्मेटिक मटेरियल जो है इनसाइड किसके, अर्थ क्रस्ट में, ब्रिंग द सराउंडिंग रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस। पर यहाँ पे जो ऑलरेडी रॉक है वो भी इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट, जो यहाँ पे ऑलरेडी रॉक था वो भी इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है। Why? Because of the intense temperature
एंड द प्रेशर, और इस वजह से जो यहाँ पे ऑलरेडी जो रॉक था इसके अंदर भी क्या है चेंजेस आते हैं, और इसी को अगेन हम क्या कहते हैं लावा इनफ्लो पर ये क्या है इससे जो चेंज आ रहा है उस पर्टिकुलर रॉक में उसे हम क्या कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। थर्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जियोडायनामिक प्रोसेस। जियोडायनामिक मींस दैट इज द ओमनीप्रेजेंट जियोडायनामिक प्रोसेस, सॉरी जियोडायनामिक फोर्सेस, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटामॉर्फिज्म। तो एक प्लेट टेक्टोनिक की भी हम बात करेंगे जिसका मैंने यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं रखी है, पर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी क्या हमारे पास मिलता है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हमने थर्ड इसमें रखा जो कॉज है जियोडायनामिक फोर्सेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी ऑफ मेटामॉर्फिज्म, इससे हमने मतलब मेटामॉर्फिक को भी हम ऐसे तो नहीं बट दो तरीके से देख सकते हैं इसको। हम टू टाइप मेटामॉर्फिक रॉक को टू टाइप से देख सकते हैं, एक तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म और दूसरा डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। पर बिफोर दैट आई गेस जो मैंने यहाँ पे बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इसके कॉजेस क्या है मेटामॉर्फिज्म होने के, जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे चेंज ऑफ द फॉर्म, तो ये जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज पहला तो मैंने कहा ओरोजेनिक मूवमेंट, जिसमें हम क्या करें माउंटेन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ओरोजेनिक मूवमेंट में, दूसरा मैंने बताया लावा इनफ्लो, और तीसरा मैंने बताया जियोडायनामिक फोर्सेस। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इन तीन प्रोसेस की वजह से उस रॉक में क्या आ रहा है चेंजेस आ रहा है, और इसी रॉक को हम क्या कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसी बेसिस पे ना इसको हमने टू टाइप में डिवाइड किया, वैसे वो स्लाइड में मैंने नहीं रखा है टू टाइप्स जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, पर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन वेरी शॉर्ट। जो पहला मैं कहूंगी थर्मल मेटामॉर्फिज्म और सेकंड डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो थर्मल मतलब क्या है, change of form or the recrystallization of the mineral of the sedimentary or the igneous rock under the influence of high temperature, इसी को हम कहेंगे थर्मल। थर्मल मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे हाई टेम्परेचर। तो ये बहुत सिंपल वर्ड है, जो मैंने यहाँ पे मेटामॉर्फिक का वर्ड में मींस जब मेटामॉर्फिक रॉक स्टार्ट किया था उसी समय मैंने ये वर्ड यूज किया था कि ये क्यों हो रहा है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल में क्या हो रहा है कि जो मिनरल्स ऑफ सेडिमेंट्री है मींस उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है, किसमें मिनरल्स में, या इग्नियस रॉक जो क्या इन्फ्लुएंस में आ रहा है हाई टेम्परेचर की वजह से, और इस वजह से जो चेंजेस हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो जैसे माउंट एवरेस्ट जो है ना ये भी मेटामॉर्फोस लाइमस्टोन से ही बना हुआ है। यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मींस क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द हाई प्रेशर। तो डायनामिक में बस यहाँ पे क्या होगा हाई प्रेशर होगा, पर जब मैं बात कर रही हूँ थर्मल मेटामॉर्फिज्म में यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। तो इस वजह से ना ये दोनों टाइप को हमने डिवाइड किया है किसके मेटामॉर्फिज्म के। तो यहाँ पे समटाइम्स दिस मिनरल्स और द मटेरियल डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज इनटू द अल्टरनेट थिन लेयर थिक लेयर दैट इज बैंडिंग, ये मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये क्या है मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि इसमें अब हम एग्जांपल की बात करें तो क्या मैंने कहा यहाँ पे स्लेट है, मार्बल है एंड ऑल है। ये हमारा डायग्राम है किसका मेटामॉर्फिक रॉक का। अब मेटामॉर्फिक रॉक इन इंडिया में यदि हम बात करें कहाँ कहाँ पे हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है, तो कॉमनली ये हिमालय में मिलेगा। हिमालय या हिमालय के साइड में हम असम बात कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये कॉमनली है। मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे जो मैंने बात किया हिमालय, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे जेनेसिस एंड शीट्स कॉमनली फाउंड होता है। ये टाइप किसका है मेटामॉर्फिक का। यदि क्वार्टजाइट की यदि बात करूं तो हार्ड रॉक है, ये भी कहाँ पे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में मिलेगा। मार्बल की यदि बात करें तो अलवर, अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर में मोस्टली इन राजस्थान में मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या एरिया है जहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक जो है इंडिया में मिलता है, ठीक है। अब हमारा आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है वो है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, अब रॉक साइकिल को इस स्लाइड पे हम समझने की बात मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ये कंप्लीट क्या है रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल मींस क्या है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक आर ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यू वन। ये कंटिन्यूअस, देखो ये फर्स्ट रॉक आया, फिर ये वेदरिंग इरोजन हुआ, डिपोजिशन होके फिर ये सेडिमेंट हुआ, फिर इस सेडिमेंट का क्या हमने कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन करके सेडिमेंट्री रॉक, देन इसको अगेन हीट एंड प्रेशर, फिर मेटामॉर्फिक, फिर ये मेल्ट हुआ अगेन मैग्मा, एंड ये क्या है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो क्या होती है स्टार्ट रहती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसकी वजह से जो ओल्ड रॉक है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है न्यू रॉक में। ये ओल्ड रॉक था, अब ये न्यू रॉक में अगेन ये क्या है कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहेगा। सो इग्नियस रॉक आर द प्राइमरी रॉक, वो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, एंड द अदर रॉक्स फॉर्म दिस रॉक। पहले तो इग्नियस रॉक आता है और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक या जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, ये दोनों रॉक इसी से इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। एंड द फ्रैगमेंट डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक इनटू द सेडिमेंट्री रॉक। वेरी सिंपल है, इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू द सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक। जब इग्नियस रॉक चेंज होती है तो वो क्या बनती है सेडिमेंट में कन्वर्ट होती है, और इससे जो रॉक बनता है इसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और जब सेडिमेंट्री रॉक
एंड ये इग्नियस रॉक, ये दोनों, इन दोनों को हीट एंड प्रेशर देके चेंज करते हैं, तब तीसरा रॉक बनता है, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द क्रस्टल रॉक, जैसे कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, ये जो रॉक है मे बी कैरिड डाउन इनटू द मैंटल। फिर ये कहां पे जा रहे हैं? मैंटल में, मींस इंटीरियर ऑफ द अर्थ, थ्रू द सबडक्शन प्रोसेस एंड सेम मेल्ट डाउन। फिर ये सबडक्शन प्रोसेस में इनसाइड जाएंगे, फिर अगेन क्या होगा? ये मेल्ट डाउन होगा एंड अगेन इट टर्न इनटू द मोल्टन मैग्मा। फिर ये किस में टर्न होगा? मोल्टन मैग्मा में। अगेन फिर ये इरप्ट होगा और ये क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक। और इस तरीके की ये जो साइकिल क्या है, ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है और इसी को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। फिर हम हमारा क्लास अब वाइंड अप करते हैं। Thank you very much.